laksa itus pika yang stigma meeting jiga kadil la boden yang aje le boden juste bor washes miru ne sambe na laksa ni ja mampe te trosa ki ilan bika na ta chi spirit tapcha na cha washes lu chi na gor na ta ma laksa chi mo yong ches du male example chungjik hulna kadil na ma tourist mampe yongan med na ngejat topsi tonga medo nangarang lami nge khampa lami kayo yang property jan yote beka lam kurang ka duks pasang ta thondu dam ja thachegi nanga amos paringa ta driver la duks ti chik mali hospital lang left of shito shia shito zerte chor butte to se hala peda chinchar sompa natana chi to poshes yodna yokspa top chu poshes pom ma kapchal Children goren chana natana chun masla jigina gora chiteu masla hal chache shikata mane thongur tevina spera gasin chache shikane te peyange last miju natana ramrane ramdok nu thamste denba ladaks yang ladaks natana yang chestiani mimans nu sambena porte natana thatu mun so samon la chi Skalas barbe tonk sam te daksana tang monai tangne zashik bab sugos nang ya zashik na tang zap sugos nang takcha chi ka ding le boshes pama takchan thong ye sambe nang takcha chi ka mile te syam chang ma rizal chmo chi na tang thong miru ye pye ye choksne umidang chen yang ye choksne ye chang ma yuwa inna phulen ki diring na tang temoshiga le boshes pa takcha chi ka le boshes pama takcha no Tema diring yang dile sompan matang rang ayus yo ngeja ngeja skyo juin da tsam kutyu. Tena topsla da buden chana da kaksa chen chache sinche la da sina. Te pia natang sangna tena sondus yo waski diring natang mane takta chika lepos ye chosun tena dua ngeja sangma. जो हमारे एपेक्स बॉडी के चेयरमैन भी हैं और लद्दाख पुलिस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं हमारे दोनों को चेयरमैन हमारे लियाकत साहब और अजहर करबलाई साहब बाकी एपेक्स बॉडी के हमारे बड़े मेंबर्स केडीए के मेंबर्स सबसे पहले हम एपेक्स बॉडी के खासकर तुर्तन साहब के बहुत मशहूर हैं कि उन्होंने ये प्लेटफॉर्म जो है दोनों बॉडीज़ को यहाँ पे फराहम किया उसके लिए हम बहुत मशहूर हैं चूँकि अभी हमारे तमाम तकरीबन मेंबर हजरात ने अपनी राय जो है यहाँ पर पेश की कि राइट फ्रॉम 5 अगस्त 2019 से लेकर आज तक हम लोगों ने क्या क्या देखा और हम लोगों ने जैसे बहुतों ने यहाँ पे एपेक्स बॉडी ने फरमाया कि जो हमें मिला है वो हमने कभी सोचा भी नहीं था और हमारी तरफ से ये है कि केडीए ने कहा कि हमने तो मांगा ही नहीं था तो खैर बहरहाल अब मसला इस बात पे है कि एक चीज़ मैं यहाँ पे ज़रूर दोहराना चाहूँगा जो कि हमने होम मिनिस्ट्री में भी वहाँ पे कहा कि जब हम लोग रेस्टोरेशन ऑफ 370 और 35A की बात करते हैं तो हम किसी काज को सपोर्ट नहीं करते क्योंकि अभी जो हम किस चीज़ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं हम लोग इसी चीज पे डिस्कस कर रहे हैं कि हम अपना प्रोटेक्शन मांगते हैं हमें अपना सेफ गार्ड चाहिए और उन दोनों में 370 हो या 35 में है उसमें वही सेफ गार्ड्स थे आज हम यही मांग रहे हैं कि उस 35 और 35A के में जो था उस उतना ही नहीं बल्कि उससे बढ़कर भी हमें सेफ गार्ड चाहिए वही हमारा मकसद ये है तो अभी जो यहाँ पे बात चल रही है आपका कि हम लोग रेस्टोरेशन की बात करते हैं या 35A की बात करते हैं क्योंकि ये चीज़ जो है अब सुप्रीम कोर्ट में गई है और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो है फाइनली जो भी आए हैं किसी को अगर आता है जो भी जजमेंट आता है तो एवरीबॉडी हैज टू एक्सेप्ट जैसे हमारे साथियों ने यहाँ पे सबों ने फरमाया है गिरी जगह तेनेगा ले नसेका ले एपेक्स बॉडी दंग करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस से तेने थुसबी गुने पड़ला मा सुंगस मा गस्पा जिक्सों इजरंग कमा तुकी सोटकर नामसिन तेने कता लद्दाख से नामा
स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन है ना जम्मू और कश्मीर ला पोखक नीस पुत्ते JNK UT लद्दाख UT नीस चोस्टेल तिंग ने samshik frunskop ngata ladakh la chisa thokne yotpin teo betkan churches pe jaste tene UT administration gozuk song testing ne UT administration go it sinspojik daksa sukwa matsuk sa last gundeba bidul cheste jaste ladakh se miba une nachi thesom jik yotpin te wasten te tene ngata apex body chokes ne tene ngata ladakh people's movement for 6 schedule zerin jang ngata apex body jik sukspin ngata तेरे स्कूल में नांगजिन तेरे दिलिंग सुपा आता है सोजुंग नांगयमपो लद्दाख ला सखी में नांगजिन फ्रुंस्कोप नंतन थोपचे से पे आता बरसों जिक्चुन योपिन तेरे तेरे फिया खाक्चन यू छापिन कि आता चिया जना यूटी लद्दाख है ना सम सिंग आता ज्योग्राफी आता एरिया योद्दो या ले करगिल निस्किन आसम सिंग आता बाशिंदा योद्दो आता मिसर योद्दो आता ते संग में तोरसा जिक्सों पसंग तेरे ngata ladakh UT na sam sing ngata side sokspa chosok yo mimang sangma chidil songte tene ngata I torse phe chidil chana tene yagar jung na parla ngata dulli nutkan espera wa tontak semboji ngata dupche se dewa semboji gyopin tenna nangwe na borte goma tene Kargil Democratic Alliance se chokde ko ngaja boda zakte Kargil la ngaja songte apex body ngata thusmi sangma aru ngata sundro sik songpin tena athak chapin tene sundros nispao तेरे ngata ले आयोन तेरे apex body ngata host जोस्ते तेरे Kargil Democratic Alliance तेरे थुस्मी संगमाई का फेब जोस्ते तेरे नाजिम दिरी ngata I का historic ngata तेरे सोक्सपाजी सोक्ते नो तेरे इन ngata तेरे consensus का थक्चत खची ngata लेंटेन इन्ना ngata सोपाव नंग डालते डेलते संगमे संगतांगपो तेरे संगमा तुक्यूसेनो गोमा ngata 6 schedule पे ngata सोपा योपिन testing ngata 6 schedule sikpe kane ngata tonta kondu amira tere te phia tene beauty with legislature ngata to poserak jate te demand bo ngata sambe vote pin apex body chokes de diring etene sungdos pe nanga changma lothun songte te be ka ngata dictures manok chia jana UT administration ka kazuk chap sul jiga tene ngata governance bo ngata dulapin te be na mimang se damska de thusbi gun matches pe jaste tene ते वो ngata mangluk se sirka ji in jar kan ngata te ka ngata thesum du ngata te वो song pasang dering apex body nang Kargil Democratic Alliance chikil thundel songte tene state thote demand bo forces ngata thak chokle ladakh te nanga tene ngata state hu de demand bo korte nam tene ngata markazi sarkar indo home ministry indo home ngata aspera tamsa da boda chikene state who de ngata demand bo process thak chokle nispao sangba thuk ji sokte ngata domicile laws de ngata te jani Jammu Kashmir da ngata domicile laws ji kongska tene ladakh se nangte sokse domicile law kongche sin je ngata ko notification je picture shows pile te jani tene apex body sokte ngata Jammu Kashmir del tane ka domicile law khongna te nga je accept choices man je ngata song ten pin te we jaste tene ngata daksa Nyatgal cultures la ngata apex body ka jungsik tadik pa indo ya UT administration indo recruitment process sangma diring supa cha matu bangata nustepin izugata ngospo chona tene khorang mune last michoches bejaste recruitment rules khorang diring supa ngata frame cho mangya nan pin tu ngunji ngunla tene te recruitment rules bangata duk teno ngaje te wang diring thak cha te ngaje success inle कि जम्मू कश्मीर जाने का तेने डोमिसाइल लॉ होना ते वो ले करके ngaje man एक्सेप्ट choche man तेने दक्षे तेने रिक्रूटमेंट वो ngata है थू ना सम सिक्स कांगा ले ngata सम सिक्स ngata करगिल ना ले ना योंतन थर्केल सोंका ने तेने ngata है थू उन सेपी दे लसना मीटिंग से वजह से को आस कांगा ले ते वो सर्चे से पिया तेने सब थुप जोक्सपा तेने ते रिक्रूटमेंट रूल से पिया तेने resident certificate po tene soch hoste tene recruitment process ngata yokspa ngaje shuru cho hosete te demand bo ngaje borsesin tene kaltes iwo lagle na machung na dachi ke na lagle na machung na tene le nang Kargil Democratic Alliance Kargil nang
एपेक्स बॉडी ले इसका स्टूडेंट से छोस्टर लायों से चाहे ई फिया तेरे गता ची गता हड़ताल धरना तंग से ना गजे स्ट्रीट का बिंचेस गजे थक चोतेन ते फिया गजे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन होम मिनिस्ट्री ते उज्जवल तेने लसना मेटका दे सिल्का ने ठू उन्हें कांगल बो मेटकन चोचे से पिया समथुक ब्योक्सपा तेने रेजिडेंट सर्टिफिकेट या मन्ना ते दक्षा संग थुकी सुनो गता आर्मी नंगा इंडो पैरामिलिट्री फोर्सेस ना इंडो पुलिस ना दक्षा स्टेट रेजिडेंट सर्टिफिकेट पिया गता यंग कार्ड जी योत गता ते वे का तेंते दक्षा रिक्रूटमेंट रूल इंजिक तानो ते गुन सो चोस्ते रंग तेने रिक्रूटमेंट बो दाची की नंगको कैप्टक शो क्वेश्चन से तंगा जे मान चोस्ते ले सुनपाओ तेने संगमा थुकी सुनो स्टेट हुड थॉप नंग तेने गता ना नमस्टोक योत नो गता कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड नम सुपा गता मिथोक तेने गता साइकियाट्री थोक ने इंडो गता जॉब रिजर्वेशन ने थोक ने इंडो तेने गता शेस्रिक स्काट इगे ते गुने थोक ने इंडो तेने गता फुंस्को को तेने नंतन छचे मानो ते फिया गता लेना करगिल डेमोक्रेटिक एलायंस तक ले गता एपेक्स बॉडी शोक ने सोजू आते जुआ भूलतेन कि 6 शेड्यूल है दाने का तेने कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड गता तेने करमेट ते गता यंपो गता तांग हो जते ते सोपा सुक्चेसे तेने ngapa ho te diring tosdu ze ring la ngata tes pedabing ki lenang kargil kaltes ngata pala zedlet jikshana tene mang chha ho tene ngata lok sabha election jane parliament election jane tene ngata I chokse tene ngata zedlet mang pojik charu te phia tene le kargil parliamentary constitution nis guru jate te sopa te ho ngaje demand borten tena nyampo tene sanga thukgi sono tene ladakh ke UT soso gyur pane phalla तेने जोम्ब्रा कोंग में ना राज्यसभा ना लद्दाख से गता थुस्मी जिक माने मेट पालो ते उसको राज्यसभा थुस्मी जियांग तेने गता योंग होस देते ते डिमांड बोगर से सिंग ते वो ते फिर खपचान चारू चे जुना गता पॉलिटिकल वाइस मैचेस में जाते गता दिल्ली का पॉलिटिकल वाइस गता शोक संग में मैचेस में जाते तेने गता ची डॉक्टर डिग्यो ते वो गता सोजिंग सुपा गता ठोट थुबा भी तो ते वो नंतन चोचे से पे तेने ई डिमांड गाबो गाजे तेने दिरी गाजे बोर्टेन तेने गा रेवा रख तेने जगह जुए चोकते तेने ने होम मिनिस्ट्री अमित शाह कुंदुन लगा जे युवा फुलचेसिन काजुक तेने करगिल डेमोक्रेटिक एलायंस येथु ब्रांको दिल्ली अबोदा जाते गता कोनंगे पोजलता सालते नो तेना सो जम्मू कश्मीर ना गुप्कर एलायंस रहते समसी गता ही द पार्टी उसको संगमा बहुत देखो सुंग्रो साल तेने गता एपेक्स बॉडी ना डेमोक्रेटिक एलायंस से थुसमी गुन समथुक जोक्सपा दिल्ली अबोते तेने ई सुंग्रो सपो गता केन ला खेसे से गजे जोक्सपा मीटिंग बहुत हो जिस तरह जो बोलते हैं बिस्मिल्लाह से केड़िए गया तो अगला जो है ऐतिहासिक जो आज फैसला हो गया अगला जो आप सेंटर से बात होगा किस नाम से होगा प्लीज थोड़ा ये जॉइंट कमेटी हमारी नहीं है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की MHA के ही रिकमेंडेशंस हैं कि एपेक्स बॉडी एज वेल एज करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की एक जॉइंट कमेटी बनाई जाएगी। आज के बाद जो भी बात होगी ये जॉइंट कमेटी बात करेगी और इसी जॉइंट कमेटी को ही लेके आपके MHA हो या PMO ऑफिस हो किसी से भी बात करनी हो ये जॉइंट कमेटी बात करेगी। कितने मेंबर्स जाएंगे सर इसमें? अब ये मेंबर्स अभी फाइनल डिसीजन से नहीं है, ये डिपेंड कर लेता है कि वो कितने मेंबर्स को अलाउ कर लेते हैं MHA को। जितने मेंबर्स को अलाउ कर लेते हैं हमारी कोशिश ये है कि मैक्सिमम मेंबर्स को वहाँ पे जितने भी सेक्शंस ऑफ शेड ऑफ सोसाइटी से उन सब को वहाँ पे रिप्रेजेंटेशंस मिले, लेकिन फाइनल जो डिसीजन लेना है वो MHA को लेना है। मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा जब ये करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ मरकजी सरकार का बातचीत हुआ तो उसमें उन्होंने होम मिनिस्ट्री के तरफ से ये फैसला हुआ कि फर्दर डिस्कशन के लिए एक जॉइंट एक कमेटी बनाई जाएगी जो कि होम मिनिस्ट्री की कमेटी होगी। उसमें उन्होंने ये कहा था कि एपेक्स बॉडी की तरफ से 2 नॉमिनेशंस होंगे, करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की तरफ से 2 नॉमिनेशन एक्सेप्ट करेंगे, बाकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल ले और करगिल के जो चेयरमैन है CEC वो एक्स ऑफिशियो वो मेंबर होंगे। तो उस पर हम लोगों को एतराज़ इसलिए है क्योंकि हम चाहते हैं इस तरह की बातचीत में जितना भी सोशल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के रिप्रेजेंटेटिव हो या पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव हो वो भी शामिल हो। इस वजह से करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने जो अभी मीटिंग की है उन्होंने 4 नामों का सुझाव रखा है। हम भी 4 या 5 नाम सुझाव रखेंगे
और हमें पूरी उम्मीद है होम मिनिस्ट्री इसको करेंगे। और जो मीटिंग में जाएंगे वो ज्वाइंट डेलीगेशन होगा, एपेक्स बॉडी के नाम से जाएगा, केडी है जो केडी के नाम से जाएगा, लेकिन ये ज्वाइंट कमेटी के मेंबर के हिसाब से जाएगा। सर क्या ये ज्वाइंट मीटिंग शुरुआत है, क्योंकि आने वाले वक्त में आप लोग बहुत सारी चीजों के लिए स्ट्रगल करने जा रहे हैं, चाहे हम स्टेटहुड की बात करें, 6 शेड्यूल की बात करें, बाकी जो 2 आपने पॉइंट्स बताया, तो उसको स्ट्रगल आप किस तरह से करने जा रहे हैं? क्या ज्वाइंटली आप स्ट्रगल कंटिन्यू रखेगा आप? बिल्कुल ज्वाइन करें। ये आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस ही, आज की मीटिंग ही इसकी शुरुआत है। आज 1 अगस्त 2011 आज शुरुआत है इसके 2021। इसके बाद जितने भी इश्यूज हैं, जो अभी मेन हमारे इश्यूज यहाँ पे हाईलाइट किए गए 4 इश्यूज हैं, उसके अलावा भी लद्दाख से रिलेटेड कोई भी इश्यूज उठे तो यही ज्वाइंट कमेटी इन इश्यूज को हाईलाइट करेगी। प्रोटेस्ट करना पड़े, धरना देना पड़े, शट डाउन करना पड़े, पूरे रोड पे आना पड़े, जो कुछ भी करना पड़े, इन डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए ज्वाइंट कमेटी कर लेगी। सर क्या आने वाले वक्त में पॉलिटिक्स को बाहर रख के, जिस तरह से आप लोग दावा कर रहे हैं कि लद्दाख के लिए स्ट्रगल करेंगे, तो पॉलिटिक्स को बाहर रख के लद्दाख के लिए कंटिन्यूअस स्ट्रगल जारी रहेगा? डियर, आपको गलतफहमी है, ये खुद ही पॉलिटिक्स है। ये जो हम डिमांड्स कर रहे हैं, इंटरनल पॉलिटिक्स, प्लीज आप थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं, ये यहाँ पे बहुत पॉलिटिक्स सारे हटा के जो आप बातें कर रहे हो ना, आपका लद्दाख के लिए स्टेटहुड ये पॉलिटिकल इशू है, आपके लोकसभा के लिए सीट ये पॉलिटिकल इशू है, रेजिडेंट सर्टिफिकेट फॉर अनएम्प्लॉयड एजुकेटेड यूथ्स ये पॉलिटिकल इशू है, आपका कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड ये पॉलिटिकल इश्यूज है। तो पॉलिटिक्स को आप हटा नहीं सकते हैं। हाँ, आपको पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के लद्दाख के लिए आपको उठाना है। इसीलिए ये सारा जितने भी पॉलिटिकल, रिलीजियस, सोशियो, स्टूडेंट यूनियंस के जितने भी आपको यहाँ पे एक गैलेक्सी दिखाई दे रहा है, इन सभी उससे ऊपर उठ के लद्दाख के वेलबींग के लिए, लद्दाख के वेलफेयर के लिए, लद्दाख के डेवलपमेंट के लिए उठिए। सर एक चीज़ और, आज का जो आपका जितना भी मीटिंग में जो बात चला, खासकर जो पार्टीज जो है, जो रोलिंग पार्टीज जो है, अभी ये स्टेज जो है एक ऐतिहासिक स्टेज है, तो इसमें हमें कहीं रोलिंग पार्टीज का कोई रिप्रेजेंटेटिव दिखाई नहीं दे रहा, चाहे लेह से हो चाहे कारगिल से हो, तो इसके पीछे क्या वो है, थोड़ा आप बताएंगे? क्योंकि मैं इसमें थोड़ा सा करना चाहूँगा। इसमें अभी आखिर तक भारतीय जनता पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट वो शामिल थे, उनको कुछ और कहीं जाना था, वो चले गए। उसके पहले चीफ एग्जीक्यूटिव चेयरमैन साहब वो भी खुद थे, और उन्होंने इस मीटिंग को खिताब भी किया, क्योंकि 12 बजे उनका कोई और मीटिंग फिक्स हुआ था, सेंट्रल इंस्टीट्यूट बुद्धिस्ट स्टडीज का वो मामला, उसके लिए मीटिंग बुलाई थी उन्होंने, तो उनके लिए जाना पड़ा। जब कंक्लूड हुआ उस समय वो यहाँ मौजूद नहीं थे, लेकिन वो आश्वासन दे के गए कि जो भी फैसला होगा हम इनके साथ हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को भी इसमें शामिल होना था, इस वजह से हमने सैटरडे को रखा, लेकिन उनका प्रायर कमिटमेंट होने की वजह से वो नहीं पाए, उनकी तरफ से हमें इंफॉर्मेशन मिला। तो अब जो ये पॉलिटिक्स की जो बात कर रहे हैं, सबका आइडियोलॉजी अपने अपने बाप है, लेकिन जो केडीए के मेंबर है या एपेक्स बॉडी के मेंबर है, लद्दाख के मुफाद में, लद्दाख के कॉमन इंटरेस्ट को आगे बढ़ाने के लिए अपने पॉलिटिकल एजेंडा को एक तरफ रखते हुए इन इश्यूज के सहमत में सब ने अपने पॉलिटिकल एजेंडा को रख के केडीए की तरफ से और एपेक्स बॉडी की तरफ से सरकार के साथ जिद्दोजहद करने का फैसला किया है। तो इसमें इश्यू तो पॉलिटिकल है, लेकिन अपने पॉलिटिकल हो सकता है इसमें से कुछ ऐसे एजेंडा हो जो किसी पॉलिटिकल पार्टी को सूट न करता हो, ना करता हो, लेकिन चूंकि ये कंसेंसस से हुआ तो सब एक्सेप्ट करते हैं इसको। सर कारगिल और लद्दाख कभी भी एक एजेंडा पे एग्री नहीं कर रहे थे। इस बार जो आपने कारगिल और लेह का भी एक एजेंडा पे एग्री नहीं कर रहे थे सर। आज जो एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपने रखा है जिसमें स्टेटहुड पे आपने माना है, तो इसको रोड मैप कब बनाया जाएगा? क्योंकि इसमें काफी प्रॉब्लम्स है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो अनएम्प्लॉयमेंट है, सेफ गार्ड है सर। इस तरह कितने मीटिंग्स और रखे जाएंगे और कैसे इस तरह को इस बात को जो है आगे लिया जाएगा? डियर, ये एक शुरुआत है। आप ये मान के चलें कि ये एक तारीखी कदम है कि पहली बार इतने डिफरेंसेस के बावजूद, इतने फासले के बावजूद पूरी लद्दाख के, चाहे करगिल के ले लें चाहे लेह के ले लें, सारी लीडरशिप आज इकट्ठी हो गई और कंसेंसस से ये जो 4 एजेंडा है जिसमें आपके जो 2 पॉइंट्स इसी में एड्रेस किया गया है,
तो ये रोड मैप आज 1 अगस्त 2021 को स्टार्ट की गई है, तो बहुत खूबसूरत इंशाल्लाह आप उम्मीद रखें जो ये ज्वाइंट कमेटी बनेगी, एक खूबसूरत रोड मैप लद्दाख के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, एक होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए बना के लेके चलेगी। और हम सभी लद्दाखी वासियों से भी रिक्वेस्ट ये करते हैं कि पूरी तरह से भरोसा रखें, ट्रस्ट रखें, फेथ रखें अपनी इस ज्वाइंट कमेटी पे। आपको कभी भी ये कमेटी लेट डाउन नहीं करेगी। जो 4-5 इशू पे कंसेंसस हुआ है उसके लेके हम लोगों ने जीतोजहद करना है। तो उसमें से ये भी डिस्कस हुआ हमें स्टेटहुड का जो मामला है वो लॉन्ग रन हो सकता है, क्योंकि जब तक गवर्नमेंट इसके लिए एग्री नहीं होता कई दौर की बातचीत चल सकती है। लेकिन जो स्टूडेंट का मसला है अनएम्प्लॉयमेंट और रिक्रूटमेंट से रिलेटेड, उसको मद्देनजर रखते हुए सेकंड जो हमने मुद्दा रखा है उसमें ये रखा है कि डोमिसाइल लॉ तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो 1 महीने के अंदर, इसीलिए हम जोर देके कह रहे हैं 1 महीने के अंदर आप पीआरसी को रेजिडेंट सर्टिफिकेट हो या जो भी ऐसा कानून डॉक्यूमेंट जिससे कि कोई कैंडिडेट जो है वो अपना लद्दाखी रेजिडेंट होने का प्रूफ दे सके, तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होना चाहते हैं। तो वो तो हम इसीलिए अर्जेंसी कर रहे हैं, वो 1 महीने के अंदर ना हो तो हम जिद्दोजहद करेंगे। तो ये इसीलिए रखा गया है कि जो डिमांड लंबे अरसे तक भी हमें जिसके लिए जिद्दोजहद करना पड़े हम उसके लिए भी तैयार होंगे, लेकिन जो इमीडिएट जो है हमारे लिए प्रायोरिटी जो है जो गवर्नमेंट कर सकती है आसानी के साथ, उसके लिए तो हम बहुत जल्दी करने के लिए हम इसमें जोर दूसरा इसमें ये भी है, मतलब यहाँ पे सही बात है कि यहाँ पे आइडियोलॉजिकल या आपके नजरियात या आपके डिमांड वगैरह में जो है डिफरेंस था। अब ये सब एक प्लेटफार्म पे आके जो है हमने सिर्फ एक डिमांड बाकी तो उसके साथ साथ आ जाएगा। एक डिमांड के पे जो है हम सब इत्तेफाक हो गया, इसीलिए हो गया कि खिते लद्दाख जो है एक डिमांड पे अगर इकट्ठे होकर जो है सेंटर से मांग करेंगे, क्योंकि सेंटर बार बार कह रहा है कि लद्दाखी जो पहले में लद्दाखी जो भी डिमांड करेंगे हम फुलफिल करेंगे। आज तक हम एक डिमांड पे पूरे जब इत्तेफाक नहीं था, इतिहाद नहीं था, आज हम एक डिमांड पे जो है एक मुतालिबे पे सब एक होके एक आवाज़ होगा। यहाँ पे करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस हो या आपके जो है एपेक्स बॉडी हो, एक आवाज़ दे देंगे फुल फ्लेज स्टेटहुड की जो है। तो इसलिए हमारी बात पे वजन भी होगी और मुझे पूरी उम्मीद है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इस पर जो है यहाँ पे जल्द जल्दी कोई डिसीजन दिया जाएगा। चलिए हम पूरी उम्मीद है। सर मेरा सवाल है केडीएस प्लीज अब आपके नहीं आखिरी सवाल सर, इम्पोर्टेंट सवाल है। हाँ अब जहाँ तक मेरा नॉलेज है करगिल में बीजेपी जो करगिल डिस्ट्रिक्ट में बीजेपी है वो काफी शामिल नहीं हुआ केडीए में, और बुद्धिस्ट माइनॉरिटी में शामिल नहीं हुआ। इस पे आपको क्या कहना है? मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, चाहे करगिल के बीजेपी हो चाहे हमारे करगिल के बुद्धिस्ट कम्युनिटी के भाई हो, करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की तरफ से 1 बार नहीं 2 बार नहीं 3 बार इन्हें इन्विटेशंस दी गई है, 3 बार इन्हें बुलाया गया है। इसके बाद भी ये अपने रिजर्वेशंस इन्होंने शो कर लिया। अब आप किसी को कंपेल नहीं कर सकते हैं। हमारी तरफ से कोई लैप्स नहीं रहा, कमी नहीं रही है। इसीलिए हमने डे फर्स्ट से कोशिश की है कि एवरी शेड ऑफ कम्युनिटी को साथ लेके चले। इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, जो भी डिसीजन ली जाएगी, जो भी फैसला लिया जाएगा वो सारे कम्युनिटीज के लिए, लद्दाख के सारे वासियों के लिए होगा। थैंक यू वेरी मच। सर जैसे अभी मेरा स्लिप ऑफ टंग से शायद लद्दाख और कारगिल निकल गया, कोई बात नहीं, तो ये वही निकल जाती उम्मीद है। क्या उम्मीद लोग लगा सकते हैं कि लद्दाख की ही बात हो और लद्दाख पूरा उठ के यूनिटी के साथ इस पे काम करेगी? क्या ये भरोसा आप लोगों को दिला सकते हैं? ये आपको यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है ये पूरा लद्दाख है, राइट फ्रॉम जोजिला अप टू चुशुल। आपका तुर्तुफान से लेकर उसमें हम एक और बताना चाहते हैं, कारगिल के जो बुद्धिस्ट है उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया है कि जो लेक एपेक्स बॉडी का एजेंडा है वो हमारा एजेंडा है। तो जब लेक एपेक्स बॉडी ऑलरेडी इसमें शामिल है, उनका एजेंडा भी है, तो मेरे ख्याल में हम सब चलिए सब उनका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आपका स्वागत है लद्दाख फ्रंटियर में। मेरे साथ मौजूद है हमारे लद्दाख के जाने माने, आपको इनकी तारीफ की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि जनाब काल सुल्तान साहब हमारे बीच मौजूद है, एक्स MP। कुछ चीज़ें जानना चाहेंगे काले कि एपेक्स बॉडी और केडीए के बीच में एक बड़ा एक लद्दाख के जो हिस्ट्री में एक और पन्ना जोड़ा गया, एकजुट होकर
आगे अब इस जंग को लड़ी जाएगी। 2-4 जो पॉइंट्स आपने अभी कुछ देर पहले डिस्कस करा था कल, सिर्फ हमें वो 2-4 चीज़ें आप प्लीज़ थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दी किस तरह की आगे ये बॉडी काम करेगी। एपेक्स बॉडी और केडी ने एक जो मिलकर एक बॉडी तैयार की है पूरे लद्दाख खित्ते के लिए, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? जी जिन मसाइलों पर आज एकमत हुए हम, कंसेंसस हुआ, ये मसाइल जो है दरपेश था पूरे लद्दाख खत्ते के लिए, जिसमें करगिल भी शामिल है, ले भी शामिल है। तो अपने अपने तौर पे करगिल में ले भी इसकी लेकर लोगों में तशवीश था और इसको मानने के लिए वो डिमांड चला रहे थे, और ले में भी आप देखते हैं उसको लेकर हम लोग इस मुज़ाकरात करने का सिलसिला एक शुरू हुआ था। तो ये पहली बार हुआ है कि ले और करगिल इकट्ठा होकर, और उसमें से भी खास तौर से करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसमें करगिल के जितने भी सोशल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, पॉलिटिकल पार्टीज है, 1-2 को छोड़ के वो सारे शामिल है। ले पेपेक्स मोबिलिटी में सभी सोशल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन और पॉलिटिकल पार्टी शामिल है। एक प्लेटफॉर्म पे आके इन मुद्दों को आगे बढ़ाने का सिलसिला शुरू हुआ है। तो ये एक बहुत बड़े अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, और इन मुद्दों को हल करने के लिए आज ये तय पाया दोनों के दरमियान कि इसके लिए हम मिलजुल कर ये करेंगे। और जो एक कमेटी होम मिनिस्ट्री की तरफ से तश्कील दी गई जिसके साथ आगे की बातचीत होगी, तो उसमें केडीए के मेंबर और एपेक्स की बॉडी के मेंबर रिप्रेजेंट करेंगे लद्दाख खित्ते को, और उनके साथ ये गुफ्तगू करके हम जितना जल्दी हो सके इसको हल करने के लिए हल ढूंढने की कोशिश करेंगे। जी सर, ये एपेक्स बॉडी ने, जैसे आपने कहा अभी कि एपेक्स बॉडी और केडीए दोनों मिलकर एक बढ़िया सी टीम बनकर आगे होम मिनिस्ट्री के पास जाएंगे, क्या आश्वासन देना चाहेंगे लद्दाखवासियों को कि आप किस तरह के कदम आगे लेने वाले, और आश्वासन क्या देना चाहेंगे चाहे वो करगिल के वासी और लद्दाख ले के जो हमारे बाशिंदे, क्या ही आप उनको एक आश्वासन देना चाहेंगे कि किस तरह के आगे आप काम करेंगे, और जो आश्वासन आपकी तरफ से वो क्या होगा सर? ये जो भी जिद्दोजहद केडीए या एपेक्स बॉडी कर रहे हैं वो लद्दाख के यूटी में और यूटी में रहने वाले लोगों के हित में हम कर रहे हैं। तो ये एक अपने आप में एक बड़ी बात है कि ले और करगिल का जो मिलन हुआ है, कंसेंसस हुआ है, ये हमारी ताकत को बढ़ाएगी। जैसा कि कहा जाता है ना कि देयर इज स्ट्रेंथ इन यूनिटी, क्योंकि अपने अपने लेवल पर कोशिश करने में और एक प्लेटफॉर्म पर आकर कोशिश करने में बहुत फ़र्क है, और इसका असर सरकार पर भी पड़ता है। तो हमारी उम्मीद है कि जो भी जितने भी छोटे बड़े मुद्दे हो जिसको कि लेकर हम लोगों ने ये कंसेंसस बनाया है, तो अब ले करगिल के जुड़ने के बाद हम उम्मीद रखते हैं कि मरकज सरकार इसको सीरियसली लेंगे, इसको टालने का काम नहीं करेंगे, जितना जल्दी हो सके इस मसले का हल देने में हमें कामयाब होंगे। और ख़ास तौर से जैसे कि हमारे अनएम्प्लॉयड यूथ है, जो एजुकेटेड यूथ है हमारे, उनका रिक्रूटमेंट ना होने की वजह से हर तरह की तकलीफ से वो गुजर रहे हैं, और उनका ओवर एज होने का भी उनमें ये तशवीश है। तो इनको इन इश्यूज़ के बारे में तो हम कोशिश करेंगे कि जितना जल्दी हो सके एक्शन हो। हिल काउंसिल, दोनों हिल काउंसिल की तरफ से भी इसमें इनिशिएटिव हो, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन भी इनिशिएटिव ले, और जो यूनियन होम मिनिस्टर है वो इसमें पूरा ताउन दे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का। हमारे साथ जनाब थुकतान सेवांग साहब जो कि रोशनी डाल रहे थे, जो भी आज एक बड़ी मीटिंग हुई, इतिहास रचा गया, जिसमें एपेक्स बॉडी लेह और केडीए का जो ग्रुप एक डेलीगेशन यहाँ आया था, और जिसके चलते इनको बीच दिन भर एक चर्चा हुई, और जिस बात के चलते एक 2 से 4 जो एक टॉपिक जो एक मसला उन्होंने उठाया था, यानी कि अब एपेक्स बॉडी और केडीए मिलकर होम मिनिस्टर से बात करेंगे, लद्दाख के जो आगे के तरक्की के लिए वो काम करेंगे। और कुछ क्षण पहले अभी हम बात कर रहे थे एमपी साहब से, जो हमारे एक्स एमपी है, उनसे बात कर रहे थे जनाब थुकतान सेवांग साहब, उन्होंने आश्वासन दिलाया कि एपेक्स बॉडी और केडीए दोनों मिलकर अब लद्दाख के खिद में बात करेंगे। मैं कैमरामैन हनीफ के साथ लद्दाख फ्रंटियर के आसिफ हुसैन। स्वागत एक बार फिर लद्दाख फ्रंटियर में। मैं आपके लिए एक और बड़ा एक ऐतिहासिक दिन आज कही जा सकती है। एपेक्स बॉडी लेह और केडीए के बीच में एक मीटिंग मुनाक़द की गई, जो कि आप सभी जानते हैं कि एपेक्स बॉडी लेह और केडीए दोनों आज मिलकर एक कुछ चीज़ों पर बातचीत होनी थी, और आज हमारे साथ इसी विषय पर बातचीत करने के लिए अंजुमन इमामिया लेह के प्रेसिडेंट
श्री जनाब अशरफ अली बख्शा साहब यहाँ मौजूद थे। इनसे जानेंगे जिस तरह की पूरे दिन आज मीटिंग हुआ। एपेक्स बॉडी के ये मेंबर भी है और KDA की ओर से भी जो करगिल से डेलीगेशन आए थे, बहुत सारे मुद्दों पर बातचीत हुई। इनसे जानेंगे किस तरह की जो ये बातचीत हुई और किस तरह के डिसीजंस जो 2 से 4 पॉइंट मेरे ख्याल में एकजुट होकर उन विषयों पर अब यहाँ से एपेक्स बॉडी और KDA आगे मिनिस्ट्री तक जाएंगे और पूरे लद्दाख खित्ते के लिए। अब हम अशरफ साहब से जानना चाहते हैं कि ये 2-4 चीज़ें क्या है सर, आप अपने थोड़ा सा राय हमारे दर्शक के लिए सर। जी हाँ, बिल्कुल। एपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस का ये आज जॉइंट मीटिंग जो है सेकंड मीटिंग था। इससे पहले इन एपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस का जॉइंट मीटिंग करगिल में हुआ था। आज की मीटिंग का मकसद ये था कि लद्दाख में जो हमें यूटी डिक्लेयर करने के बाद जो मुश्किलों का सामना हाँ लद्दाख के लोग कर रहे थे, जैसे हमारे ज़मीनी मसले को लेके, लैंड प्रोटेक्शन को लेके, जॉब रिजर्वेशन को लेके, हमारे कल्चर, आइडेंटिटी, इन्वायरमेंट, इन सब इश्यूज़ को लेके हमारे लोगों में, ले और करगिल के तमाम लोगों में, दोनों डिस्ट्रिक्ट के लोगों के अवाम में एक अप्रहेंशन, एक डर था कि आगे जाके इन चीज़ों का क्या हमें नतीजा आने वाला है। तो यकीनन हम सबको पता था जब तक कोई हमें ये सारे प्रोटेक्शन नहीं मिलते हैं, अगर हमें सही तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन कोई प्रोटेक्शन ना मिले तो ये सब चीज़ें जो हमारे हाथ से जाने वाला है, ये सब चीज़ें जो है हमारे लद्दाख के फ्यूचर के लिए ठीक नहीं है। इस सोच के साथ एपेक्स बॉडी और डेमोक्रेटिक अलायंस ने 2 दफ़ा मीटिंग हुआ और आज सेकंड मीटिंग था। आज भी बिल्कुल इन चीज़ों को, हर एक इश्यूज़ को लेके बहुत थ्रेडवेयर एक डिस्कशन हुआ। अब एक बात ये था कि करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की तरफ से एक बात ये उन्होंने ये डिमांड किया था कि भाई स्टेटहुड जब तक ना मिले तब तक हमें कोई सही तरीके से कोई हमारा स्ट्रक्चर नहीं बनता है, सही तरीके से हमारा सिस्टम नहीं चलेगा। तो इसी तरह से ले का भी यही बात था। ले से ये बात था कि ले का ये था कि भाई हमें, हमारा डिमांड ही पहले से यही था कि लद्दाख का यूटी विद लेजिस्लेचर का डिमांड था, लेकिन हमें अधूरा एक डिमांड दिया गया, सिर्फ हमें यूटी मिला, लेजिस्लेचर नहीं मिला, जिसकी वजह से हमें भी इस पूरी तरह से हम सेटिस्फाइड नहीं थे। इसलिए हम सब लोग फिर करगिल और ले दोनों इन चीज़ों को लेके आपस में बैठ के फिर बड़े ही सोच के साथ, विचार के साथ फिर एक मुद्दे पर आज कंसेंसस हुआ कि भाई देखिए, हमें एक तो हमें बिल्कुल एक सिस्टम, सही एक सिस्टम हमें चाहिए, प्लेस में होना चाहिए, ताकि हमारे बिल्कुल लद्दाख के जितने भी अफेयर्स जो है, बिजनेसेस जो है, एडमिनिस्ट्रेशन के बिजनेस से ये सारा ढंग से चले। और दूसरा, हमारे लिए एक प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, क्योंकि हम एक फॉर फ्लंग एरिया में रहते हैं, हम एक बहुत ही सेंसिटिव एरिया में रहते हैं, जिसको लेके हमारा एक कल्चर, अलग से एक कल्चर है, ज़बान है, हमारा इन्वायरमेंट बहुत फ्रेजाइल है, हमारे वसाइल जो है बहुत ही लिमिटेड है, जैसे कि जॉब एवेन्यूज़ बहुत कम है। इन सब चीज़ों को लेके हमें ये डर है कि हमें इसको प्रोटेक्शन की एक ज़रूरत है। जब तक हमें ये प्रोटेक्शन ना मिले तो हम शायद इस चीज़ों से हमें हाथ धोना पड़े। इसलिए आज बिल्कुल ही एक ऐतिहासिक एक फैसला लिया गया कि ले और करगिल के दोनों, एपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस मिल के दोनों ने अच्छी तरह से सोच समझ के आज गवर्नमेंट के सामने बिल्कुल कुछ मुद्दे, कुछ डिमांड सामने रखने का फैसला किया, जिसमें सबसे पहले तो हमने स्टेटहुड की डिमांड करना है, और दूसरा हमने प्रोटेक्शन, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड की बात करना है, और तीसरा हमें ले और करगिल के लिए 2 अलग पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी की ज़रूरत है, और तीसरा उसके बाद फिर जो है राज्यसभा में जब से हमें जम्मू कश्मीर से अलग किया गया, अब हमारा अपना एक हैसियत बन गया, तो राज्यसभा में भी हमारा अपना हिस्सा हमें मिलना चाहिए। इसको लेके इन मुद्दों पर हम लोग का इत्तेफाक के साथ हमारा कंसेंसस हुआ, और ये आगे कोई भी इन मुद्दों को लेके ले और करगिल के डेमोक्रेटिक अलायंस जो है कुछ भी करना पड़े, चाहे प्रोटेस्ट करना पड़े, चाहे हमें धरने पे जाना पड़े, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, इन मुद्दों को, इन डिमांड्स को पूरा करने के लिए हम पूरा इत्तेफाक से बिल्कुल ही एक ही राय से, एक ही मत से हम लोगों ने एक ही प्लेटफॉर्म से आज हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू लद्दाख के लोगों तक पहुंचाया है। और हमें पूरा उम्मीद है कि लोग भी वाकई, अब हमें इस बात पर पूरा यकीन है कि लद्दाख, ले और करगिल के लोग जो है इन बातों को बिल्कुल ही सीरियसली लेंगे। इसको बिल्कुल ईमानदारी के साथ हम सब लोगों को एक होके इसको साथ देने की ज़रूरत है, और अगर साथ देगा तो ये ना बनने वाली चीज़ भी नहीं है, और इसको जब तक नहीं बनते हैं हम लोगों को बिल्कुल ही एकजुट होकर इसके लिए मुकाबला करने की ज़रूरत है।
जी अशरफ साहब, बिल्कुल एपेक्स बॉडी और केडीए के बीच में ये एक बड़ा एक मीटिंग था जो आज हुआ। अशरफ साहब, हमें एक बात और बताइए सर कि कितना समय लगेगा, क्योंकि अभी एक डिसीजन लिया गया है दोनों ही दो जो एपेक्स बॉडी और केडीए द्वारा कि हम स्टेट रूट के लिए लड़ेंगे, जो अब रिजर्वेशन के लिए लड़ेंगे, और भी 2-4 मुद्दे थे, और चाहे वो सीट की बात करिए। आप मुझे अशरफ साहब ये बताइए कि कितना इसमें समय लगेगा, क्या आगे और भी इस तरह की मीटिंग होने के चांसेस है केडी और एलए हमारे एपेक्स बॉडी ले के बीच में? तो ये किस तरह का एक हमारे जो दर्शक उनको आप बताइए कि कितना समय लगेगा, और क्या इससे आगे और भी मीटिंगें होगी या आज ही से इस पर कार्रवाई की जाएगी? सर बिल्कुल, कार्रवाई तो आज होगी। आज हमने ऐलान कर दिया कि हमने अपने जितने भी इशू डिमांड है उसको लेके हमने आज ऐलान कर दिया, और हमें पूरा उम्मीद है क्योंकि अभी जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, जो रूलिंग पार्टी जो है, उन्होंने हमें बार बार हमें ये इंडिकेशन दिया गया है कि लद्दाख के लिए हम जो भी कुछ करना पड़े हम करने के लिए तैयार हैं। तो हमें नहीं लगता है कि इसमें कोई ज़्यादा देर लगेगा, टाइम लगेगा, क्योंकि आज हमारा गवर्नमेंट जो है, मोदी जी की क़यादत में जो गवर्नमेंट चल रहा है, वो लद्दाख को लेके बहुत ही सीरियस है, बहुत ही वो लोग बिल्कुल हर लम्हे हर स्टेज पर उन्होंने लद्दाख का नाम लिया है, और लद्दाख को आगे ले जाने के लिए लद्दाख के लोगों की इंटरेस्ट को, एस्पिरेशन को बिल्कुल सेफगार्ड करते हुए, उनको प्रोटेक्शन देते हुए लद्दाख को के डेवलपमेंट की तरफ ले जाने के लिए उन्होंने हर बार उन्होंने अपनी जो सोच जो है सामने लोगों के सामने रखा। इस बातों को लेके तो हमें नहीं लगता है कि हमें कोई ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि वैसे भी अब हमें बार बार सुनने को आया कि भाई लद्दाख के लिए और करगिल का एक ही मत होना चाहिए, एक ही वो होना चाहिए। आज हम एक हो गया है, तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट के लिए भी कोई ज़्यादा बड़ा इशू भी नहीं रहा है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आपने अपना कीमती समय दिया। लद्दाख फ्रंटियर के लिए मैं आसिफ हुसैन, कैमरामैन हनीफ के साथ